In this video, we are going to learn about new product development process. We are going to discuss in this video is what is a product, what is new product, what are the reasons for new product development, then methods for developing new product and new product development process. As we all know what is a product, क्या है product? Product है a set of tangible and intangible attributes which include packaging, color, price, quality, brand name and manufacturers and retailers services. All these that buyer accept for satisfaction of his want. कोई भी ऐसी चीज जो कि buyer accept कर रहा है for satisfying his want, that is a product. What is a new product? A new product is a product which is totally new in concept. Concept नया है. For example, smartphones. Any product which is perceived by the customer as being new, उसके लिए ये चीज़ नई है. A new product can be categorized into a truly innovative and unique product like fully automatic washing machine. Second is replacement products for existing product. Existing product की replacement है. For example, आपकी चोको कैफे जो है वो नेस्ट कैफे का एक न्यू फ्लेवर है, that is a replacement of your Nescafe which include the chocolate flavor. Next is imitative product which is new to the company but not new to the market. For example, Siska produced LED bulbs. LED bulbs are not new to the market but for this company it is a new product. New product are categorized as new to the world. वर्ल्ड के लिए नया है, कभी नहीं था. न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन के लिए हमने कभी प्रोड्यूस नहीं किया था. एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, हमने अपने प्रोडक्ट लाइन में ऐड करा. इम्प्रूवमेंट्स एंड रिविजन्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हमने उसी में ही इम्प्रूव करा. पहले माइक्रोवेव था, अब उसमें हमने कन्वेक्शन की फैसिलिटी भी डाली, ग्रिल की फैसिलिटी भी डाली. रीपोजिशनिंग, अब अपने प्रोडक्ट को किसी और मार्केट में जाकर रीपोजिशन कर दिया. पहले ये प्रोडक्ट नहीं मिलता था, अब ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. कॉस्ट रिडक्शंस. What are the reasons for new product development? The first and foremost reason is to maintain or to gain the competitive image in the market. हमारे competitors नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमें अपनी competitive image को मेंटेन करने के लिए नए प्रोडक्ट निकालने पड़ रहे हैं. To bring the changes in the consumer needs. कंज्यूमर ने कभी पहले सोचा ही नहीं था ये प्रोडक्ट ये काम भी कर सकता है. हमने क्या करा, चेंजेस लाया कंज्यूमर की नीड्स में कि आपको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है. हार्पिक है, आपका टॉयलेट क्लीनर है, अब आपको बाथरूम क्लीनर की भी ज़रूरत है क्योंकि एक प्रोडक्ट सभी काम नहीं कर सकता है. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि फेवर कर रहा है टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट. कंपनी की इमेज है मार्केट में कि कंपनी रिस्क लेती है और हर साल नए नए प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है. मेथड्स फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट. एक फर्म नए प्रोडक्ट टू वे से ऑब्टेन कर सकती है. फर्स्ट इज बाय R&D सेल. सभी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाए हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि काम करते हैं टू ब्रिंग आउट इनोवेशंस और टू ब्रिंग आउट एंटायरली न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. नेक्स्ट इज बाय एक्विजिशन. By this, a firm buy another firm wholly or get license in order to obtain the new product. Coming to the process of new product development, it is a combination of 8 steps. The first step is idea generation, next is idea screening, then concept development and testing, marketing strategy development, business analysis, product development, market testing and commercialization. The first step is idea generation. क्या बनाएं, कैसे बना सकते हैं, ये आइडिया हम जनरेट करते हैं. आइडिया जनरेशन एक कंटिन्यूस और सिस्टमेटिक सर्च है फॉर न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज. These ideas are generated using creativity generation techniques and brainstorming sessions. एक ऑर्गेनाइजेशन आइडिया दो डिफरेंट सोर्सेज से ले सकती है, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. Our internal sources includes
रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज ने R&D डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जो कि कंटिन्यूस रिसर्च कर रही है फॉर new product development. They are utilizing their valuable time in searching the clues from the market so as to improve the product or develop new product. Next is manufacturing people. We have engineers, scientists, skilled workers who manufacture the product and have the ideas about product modification and improvements. नेक्स्ट आर द सेल्स पीपल. सेल पीपल भी गुड सोर्स हो सकते हैं न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ के, क्योंकि वो कस्टमर से काफ़ी इंटरेक्ट रहते हैं, उन्हें पता है व्हाट द कस्टमर नीड, व्हाट द कस्टमर वांट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर्स. नेक्स्ट इज द टॉप मैनेजमेंट. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप मैनेजमेंट की टू एक्सप्लोर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़. Now next source is external source. We have a long list of external source. First is secondary information. This information we get from industry departments, government agencies जो कि various lists of available licenses और new product developments जो है वो निकालती है, so that हमें clues देती है कि आप क्या क्या नए product के ventures में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. कई सारी बिजनेस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स भी न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती रहती है टाइम टू टाइम. नेक्स्ट आर द कस्टमर्स. कस्टमर्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए. कस्टमर से हम उनके सजेशंस और कंप्लेंट्स जो हैं वो मंगाते रहते हैं ताकि हमें नए प्रोडक्ट के बारे में नए नए आइडियाज़ मिल सकें कि हम क्या ऐसा मैन्युफैक्चर करें कि उनकी नीड्स और वांट्स बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई हो सके. फॉर एग्जांपल एक फूड प्रोसेसर की हम बात करें, एक हाउसवाइफ को कई सारे अप्लाइंसेस यूज़ करने पड़ते हैं अलग अलग काम के लिए, तो उसके लिए हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस बना दिया, दैट इज फूड प्रोसेसर. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स भी हमारे एक अच्छा सोर्स हैं प्रोवाइड कराने के लिए इंफॉर्मेशन या आइडियाज़. हमारे कॉम्पिटिटर्स ये बना रहे हैं तो हमें इस तरह से ये प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके ये बना लेना चाहिए. नेक्स्ट इज योर रीसेलर्स. ये दीज रीसेलर्स आर द मिडल मैन जो कि इंटेग्रल पार्ट है फर्म के मार्केटिंग सिस्टम के लिए. ये आपको सजेशंस और आइडियाज़ दे सकते हैं. नेक्स्ट आर द इन्वेंटर्स. हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इनोवेटर्स, अदर क्रिएटिव पर्सन भी की सोर्स हो सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए और न्यू आइडिया जनरेशंस के लिए. नेक्स्ट इज योर फॉरेन मार्केट्स. कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमने फॉरेन मार्केट से अडॉप्ट किए हैं, तो न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ वहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं. जैसे हमने फ्रांस से वाइन देखी, ये प्रोडक्ट आइडिया था. इटली से लेदर प्रोडक्ट्स हमने देखे, ये न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ वहाँ से जनरेट हुए हैं. नेक्स्ट आर द एनिमेटेड फिल्म्स. कुछ प्रोड्यूसर्स और राइटर्स एनिमेटेड फिल्म्स डेवलप करते हैं जो कि कई एनिमेटेड प्रोडक्ट्स को शो करते हैं. दीज आर ऑल्सो अ आइडिया फॉर new product development. There are some other sources like technical universities, engineering colleges, government research labs, private research organization, industrial consultants, advertisement agencies, international trade fairs, exhibitions, suppliers of raw material, consultants, etc. Those who provide the ideas for new product generation. Is the screening of ideas. It is a critical evaluation. अब बड़े सारे आइडियाज़ इकट्ठे हो गए, सभी के सभी आइडियाज़ तो पॉसिबल नहीं है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. नाउ हमने क्या करा, क्रिटिकल इवेल्युएट करा और फिल्टर करा उन आइडियाज़ को टू पिक आउट द गुड वंस एंड ड्रॉप आउट द पुअर वंस. हर आइडिया के अपने लिमिटेशंस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, तो हमने क्या करा, उसको चेक करा कि किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और किसकी लिमिटेशंस कम हैं. A preliminary elimination process in which a large number of product ideas are screened in terms of the organization's objective, policies, technical feasibility, and financial viability. Two methods are used for screening the ideas. First is the checklist method, second is the idea rating method. Now, the third step is concept development and testing. Here, the product idea is converted into product concept. Now, what is the difference between product idea and product concept? सुनने में दोनों सेम लगते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस.
Product idea means the possible product that company may offer to the market, while product concept is a detailed version of the idea stated in meaningful consumer terms. यहाँ पर viability हमने check करनी है. While developing product concept, following criteria should be considered. क्या क्या criteria हैं? Who will use the product? किसको प्राइमरी बेनिफिट प्रोवाइड होगा हमारे प्रोडक्ट से? When will this product be consumed? Concept testing means presenting the product concept to target customers physically or symbolically and getting their reactions. हमने क्या करा? अपने concept को explain करा और reactions हमने लिए कि क्या सच में जो हम ये सोच रहे हैं वो possible है भी या नहीं. In the next step, we develop the marketing strategy. Developing initial marketing strategy for introducing the product to the market. How we introduce the product to the market. It consists of three parts. First is to describe the target market, product positioning and sales. क्या हो गया हमारी target market? Next is to describe the price, channel of distribution and budget. हमने पूरी marketing strategy को यहाँ पर सोचना है. क्या pricing रखेंगे, channel of distribution क्या होगा, budget क्या है हमारे पास. We also plan the long run sales, profit goals and our marketing mix. Next step, we perform business analysis. What is a business analysis? Business analysis means to decide whether from financial as well as marketing point of view the project is beneficial or not. अब तक हमने फिजिबिलिटी चेक करी, अब हमने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करना है. An evaluation of product idea in depth to determine its financial, competitive, manufacturing and marketing viability in a given set of business environment. जो business environment है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे इन डेप्थ कि क्या ये हमारा आइडिया वाकई में प्रॉफिटेबल होगा या नहीं. Business analysis, we estimate the likely selling price based upon the competition and customer feedback. We estimate the sale volume based upon size of the market and estimate profitability and break even point. So main thing is that if the above are matched with the company's objective, then the new product concept move to the next stage of product development. If not, then हमें दोबारा से work करने की ज़रूरत है previous steps पर. Next step is the product development. अब तक हमारा जो product था वो सिर्फ word था, description थी या you can say drawing थी. अब तक माइंड में आइडिया था, अब तक हमने इसको फिजिकली एक प्रोडक्ट की फॉर्म में डेवलप नहीं किया था. यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को फिजिकली डेवलप करेंगे, फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे. द कंपनी विल नाउ डिटरमिन whether the product idea can be translated into a technically and commercially feasible product. Now we form the product here. Here we do engineering research, that is produce a physical prototype, then develop model, then customer preference test and then develop the marketing mix. Now comes the next step of test marketing. Test marketing क्या है? That is a controlled experiment in limited but carefully selected part of market aiming to predict the sales एंड प्रॉफिट कंसिक्वेंसेस. हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर मार्केट में लॉन्च नहीं करते. पहले हम अपने प्रोडक्ट को एक छोटे से एरिया में लॉन्च करेंगे ताकि हम उसके एक्शंस और रिएक्शंस देख सके कस्टमर के, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे प्रोडक्ट में कहीं कोई डेफिशिएंसी या वीकनेस तो नहीं है. इन केस अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, डेफिशिएंसी या वीकनेसेस हैं, तो इसको फुली कमर्शियलाइज करने से पहले ही हम रिमूव कर सके, अब प्रॉपर एक्शन ले सके. एक बार अगर प्रोडक्ट कमर्शियलाइज हो गया तो उसका सक्सेस और फेलुअर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जबकि टेस्ट मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट का फेलुअर कंट्रोल कर सकते हैं. Here the last step comes, that is commercialization. After successful market testing,
a new product come to this stage. This is the last stage. अब तक हमने टेस्ट मार्केट करा, हमने अपने प्रोडक्ट को सक्सेस और फेलियर रेट चेक कर लिया, कोई भी डेफिशिएंसीज थी, डिस्क्रिपेंसीज थी, वीकनेसेस थी, हमने उसको रिमूव कर दिया। इस स्टेज पर आकर हमने अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर स्टार्ट कर दी, सो दैट हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। For formally launching of a new product, the following decisions should be taken. First is the timing, that is when to launch. कब हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे? What will be the appropriate timing? अभी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या इससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, तो क्या हम अपने प्रोडक्ट को अभी ही लॉन्च कर दें? नेक्स्ट इज जोग्राफिकल सेगमेंट। आपका कौन सा जोग्राफिकल सेगमेंट रहेगा? वेयर टू लॉन्च। नेक्स्ट इज टारगेट मार्केट प्रोस्पेक्ट्स, टू whom, ये भी आपने सोचना है, ये प्रोडक्ट किसके लिए है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्टरी मार्केट स्ट्रेटेजी। दिस इज द मेन थिंग, हाउ टू लॉन्च। आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना किस तरह से है। हर एक कंपनी, चाहे वो बड़ी है या छोटी, इस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से होकर गुजरती है, और हर कंपनी को इन 8 स्टेजेस से को भी प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, ताकि वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और अपने प्रोडक्ट को एक सक्सेस की फॉर्म में मार्केट में पेश कर सके। दैट्स ऑल अबाउट माय दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।